Today we will see a beautiful poem by Ruskin Bond, that is Cherry Tree. In section 2, this is the first poem that we have. So let's start. Ruskin Bond, he was born in Himachal Pradesh and he had written hundreds of short stories, essays, novels, more than 30 books for children. So he is a very celebrated author from India itself. We take pride in it. And he has also received Sahitya Academy Award for English. And it is the most prestigious award that you can receive for literature. तो इस पोएम की समरी देखते हैं. The poem Cherry Tree is about the poetess Cassie S. Ledger over a tree which he planted that took 8 years to grow. He is expressing his wonder at the ways of nature and how cherry blossoms are fragile and quick to fall. The tree gives him immense joy as he can see the stars and blue sky through dappled green trees. Here comes the poem. हम कुछ लाइन पढ़ेंगे and after that I will tell you what that means in Hindi. ठीक है? Let's start. 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. Must have a tree of my own myself and watered it once and went away. And forgot, but cherries have a way of growing, though no one's caring very much or no way. तो ऑथर कहता है कि 8 साल हो गए कि मैंने एक चेरी सीड ग्रास में डाला था. मुझे ऐसा लगा था कि मेरा खुद का एक पेड़ होना चाहिए. मैंने उसको पानी दिया एक बार और मैं जाके सो गया और मैं भूल गया. बट चेरीज हैव देयर ओन वे ऑफ ग्रोइंग. वही भी उसके तरफ क्या बोलते हैं ज़्यादा केयर नहीं देख रहा था या उसकी देखभाल नहीं कर रहा था कि वो बड़े हो गए. And suddenly that summer near the end of May, I found that we had come to stay. It was a very small 5-month child, lost in tall grass running wild. और फिर समर में मई के एंड में उसको एक पेड़ वहाँ पे दिखा. वो बहुत छोटा सा था, 5 months का बच्चा था, जो बड़े बड़े झाड़ियों में वही खोसा गया था. Wolves ate the leaves, the grass cutters kite, split it apart, and the monsoons were light. Shivered the slender stem, even so, next spring I watched 3 new shoots grow. The young trees travel upward, thrust its arm in a fresh, fierce mist. तो वो कहता है कि गोफ्स उसके पत्ते खाते थे और ग्रास कटर ने उसे काट दिया और 2 टुकड़ों में बांट दिया. Shivered the slender stem, ऐसे क्या बोलते थे, खराब हो गई थी वो जो पतली सी स्टेम थी. फिर भी नेक्स्ट स्प्रिंग में उसके नए नए शूट्स, मतलब वो और बड़ा होने लगा, स्ट्रगल से ऊपर बढ़ने लगा और एक एग्रेसिवली क्या बोलते हैं अपना नेचर शो करने लगा. आप कहीं ना कहीं देखो, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर से भी मैच करता है कि एक बच्चा जब बड़ा होता है तो स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है. पेरेंट्स, मैक्सिमम इंडियन पेरेंट्स उसके फीस भर के उसके बारे में भूल जाते हैं. तो कभी कभी हार्श कंडीशंस में, पढ़ाई के प्रेशर में बहुत छोटा सा बेबी होता है लेकिन वो कहीं ना कहीं खो जाता है. ओट्स उसके पत्ते खा जाते हैं. बोर्ड्स से लाइक नकली फ्रेंड्स ग्रास कटर उसे 2 टुकड़ों में बांट देता है, लाइक बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर. तो वो पतली सी लकड़ी कहीं ना कहीं सिमट जाती है, लेकिन उसके बाद उसमें नए क्या बोलते हैं शूट्स दिखते हैं, नए ग्रोथ दिखते हैं. वो उस स्ट्रगल से बाहर आता है फियर्सली. जैसे जेई के बाद, नीट के बाद यू माइट फेस फेलियर्स, बट आप उससे ऊपर उठ पाते हो. आप फियर्सली लड़ते हो, अपने स्ट्रगल्स को फेस करते हो. सो ये देखो, चेरी ट्री भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो. आप कोई मतलब बहुत बड़ी मुसीबत आने के बाद वह पीछे मुड़ जाते हो तो नेचर भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा. दिस शोज द लॉज ऑफ द नेचर. ओके, बस कम बैक टू द पोएम. फॉर राइट एंड एयर एंड सन, for light and air and sun, I could only wait as one who watched wondering why time and the rain made a miracle from green growing plain. I went away next year, spent a season in Kashmir, came back thinner and rather poor, but reached a white cherry tree at my door. 6 feet high, my own dark chin, as I could scarcely believe it a berry. Ripened and jeweled in sun, hung from a branch, just one. And next year there were blossoms,
small thing fragile, quick to fall. At the nearest bed, sleepiest dreams. फिर वो कहता है नाइट टाइम और सन के लिए फियर्सली फाइट करता था, हम जैसे फियर्सली फाइट करते हैं अन्न वस्त्र निवारा के लिए, दैट इज फूड शेल्टर एंड एग्जिस्टेंस। हम सबको वही चाहिए, हम सबके वही स्ट्रगल्स है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी हो गई है। इवन फॉर द बेयर मिनिमम जॉब यू आर सपोज टू वर्क योर एस ऑफ। सो पोएट कहता है कि वो बस वेट कर सकता था, वॉच कर सकता था कि कैसे टाइम ने और बारिश बैड वेदर ने एक मिराकल बना दिया। नेक्स्ट ईयर जब वो कश्मीर से लौट के आया, वो बहुत पतला और गरीब हो गया था, लेकिन वो रिच था क्योंकि एक चेरी ट्री उसके डोर के पास था। अगेन कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ अ चाइल्ड, पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि उनका बच्चा मतलब किस चीज़ों से लौट रहा है। बच्चा घर से बाहर निकल जाता है फॉर कॉलेज, यू गो टू different cities and all, and when you come back your parents are old and thin and poor, like poor in the sense health wise poor, क्योंकि उनकी एज हो चुकी होती है, बट वो खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने एक छोटे से सीड से इतना बड़ा इंसान, मतलब छोटे से बच्चे से इतना बड़ा इंसान बना दिया है, एंड दे टेक प्राइड इन लुकिंग एट इट। तो वो बोलता है कि 6 फीट की ऊंचाई पे मेरी खुद की चेरी थी, मुझे लगा नहीं था कि ये मेरी मेरी ही बेरी थी, मुझे लगा नहीं था ये मेरा ही बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा। ओके, समथिंग दैट बिग। पूरे ब्रांच में बस ब्रांच जस्ट वन एक ही लगी थी, वो बहुत प्यारी थी। नेक्स्ट ईयर देयर वर ब्लॉसम, छोटे ब्लॉसम में बहुत सारे पिंक फ्रेजाइल पत्ते निकल आते हैं। एट द मेरियस एट द स्लीपिएस्ट प्लेस। ओके, नेक्स्ट पैरा। I lay on the grass at ease, looking up through leaves at the blue, blind sky and the flitches out the flue, and flittered through the dappled green while bees in escassy drank. Escassy का मतलब feeling of great happiness. Dappled मतलब dark light patches of nectar from each blossom, of nectar from each bloom, and the sun sang swiftly, and the stars turned in the sky, and moon moths and singing crickets and I. Yes, I praised nights and stars and green, that small cherry grown by me. सो दिस इज सेम कि ओल्ड पेरेंट जो होता है वो अपने बच्चे की ग्रोथ देखकर प्राइड लेता है, खुश होता है। तो रस्किन बॉन्ड भी वही कहता है कि मैं ग्रास पे बैठा, मैं देखने लगा उस ट्री के ऊपर कि अंधेरी रात में वो डार्क ग्रीन कैसा लगता है, उसके ऊपर जो बीज आ रहे हैं, नेक्टर के ब्लूम ले रहे हैं, मून मॉथ्स और क्रिकेट्स गाना गा रहे हैं। तो मैंने उस रात को प्लेस किया, मैंने तारों की तरफ देखा, मैंने मेरे पेड़ की तरफ देखा। हाँ, ये बड़ी छोटा सा चेरी है जो मेरे अपने आप से बड़ा किया है। सो दैट्स इट, दिस ब्यूटीफुल पोएम कम्स टू एन एंड। और अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए तो मैंने ये समरी लिखी है। आप पूरी पोएम तो एग्जाम के लिए याद नहीं कर सकते, बट यू कैन रीड दिस or take a screenshot and then you can revise it quickly. I will read it for you. This poem deals with the poet's feeling of great joy. But the reality is कि उसने एक बार पानी दिया और वो भूल गया था. Same like our parents. Message is that even small things with determination can come over hardships and grow into something beautiful, much like the cherry tree grew from a single seed despite all odds. It also carries a message of nature conservation, encouraging readers to plant trees and appreciate the wonders of nature.